Good morning all of you. So before we begin our day, I would like to clarify to the virtual students that why am I and others are dressed in the same way. We at Pune are celebrating a complete week as days with the various activities, and today's day is a traditional day. So in traditional day, we have got many of the students or all of the students dressed fantastically. Homework question number 2 का आंसर चेक करते हैं. ट्रायल बैलेंस ની ટોટલ કેટલી છે? ओके, और किसी का कोई? 328 950. Abhijit, what's your answer? 3? No. Your correct answer is 3,69,400. Let's check one by one. सबसे पहले पहला अकाउंट है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. What is the closing balance in stores ledger control account? And what is that? Is it closing stock of raw material? 74,900 by balance carried down. That is the closing stock of raw material. आया सभी का? उसके बाद wages control account, इसके डेबिट में आया है wages paid. क्रेडिट में दो फिगर्स है, wages transferred to the WIP control account and wages which are indirect, that is factory overheads. इसमें कोई closing balance नहीं है. Check all of you. Wages control account में there is no closing balance. The next comes factory overhead control account. Debits है, overheads paid. Credit में है by WIP control 359,100. ये जो क्रेडिट में अमाउंट बचा है 6150. Have you got that amount? What is that? What is that? Is it balance or is it unabsorbed? What exactly it is? It is the balance, not unabsorbed. Now I'll tell you why. Because question में एक word मैंने bold और underline और red दिया, and that is quarter. Please understand, under absorption, over absorption, it will be ascertained only at the end of the year. और तभी जाके वो costing P&L में ट्रांसफर होगा. समझ में आ रहा है? अभी उसे costing P&L में ट्रांसफर मत कीजिएगा. So it will be by balance carried down. Have you got amount 6150? आया है क्या सभी का ये अमाउंट? चेक कीजिए. उसके बाद है WIP control account. What is the position in WIP control account? 142,800 by balance carried down. Check all of you. Vibhu, have you got this? What is this 142,800? Closing stock of work in progress. The next account is admin overheads control account. इसमें आप देखोगे तो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है. बैलेंसिंग फिगर इज इट कमिंग 2,300. ये क्या होगा? बैलेंस होगा. कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर मत करना. क्यों मत करना? क्योंकि इट इज दी क्वार्टर, इट इज नॉट दी ईयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. यहां से हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. कितना है? 105,100. Absolutely correct. Selling and distribution overheads control account. डेबिट में बैलेंस आएगा 4350. चेक ऑल ऑफ यू. हैव यू गॉट दैट फिगर? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इसमें कोई बैलेंस नहीं होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट्स होती है कॉस्ट, और वो क्रेडिट से ट्रांसफर होता है कहां? बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट. सो कॉस्टिंग P&L अकाउंट के डेबिट में है 10,74,100. और कोई डेबिट है? Is there anything debit?
क्या है डेबिट? क्या क्या है? हम्म, ये क्यों आएगा? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा ना सर। एडमिन ओवरहेड्स का अमाउंट कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। नहीं, वी आर डूइंग कॉस्टिंग पीएनएल। वेयर आर यू? वी आर डूइंग कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर देखो, क्रेडिट चाहिए कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में। मैं कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट की बात कर रहा हूं, वहां एक ही फिगर दिखनी चाहिए आपको, 10,74,100। क्रेडिट्स चेक करो, सेल्स 14,43,000। एडमिन और सेलिंग क्रेडिट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इट इज जस्ट द क्वार्टर एंडिंग। सो 14,43,000 इज योर सेल्स minus 10,74,100. Is it coming 3,68,900? That's your balance in costing P&L account, the profit. Okay. General ledger adjustment account, what is the position? 46,600 डेबिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 46,600। दैट्स ऑल। फिर क्या आ रहा है टोटल ट्रायल बैलेंस का? हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, बताइए। माय अमाउंट में बिलोंग, चेक करो। ट्रायल बैलेंस में कितना बैलेंस आ रहा है? 3,75,550। चेक ऑल ऑफ 3,75,550। कौन सा बैलेंस गलत हुआ मैडम? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में देयर इज ओनली वन फिगर 14,43,000 और क्रेडिट में है बहुत सारी फिगर्स, तो बैलेंस भी आ रहा है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 46,600। शिवानी, you got the answer? No? Which balance went wrong? GLA. Prabhat, you were absent. Very good. Check करो GLA credit side. Buy balance brought down 313,150. Buy stores ledger control account 4,80,100. Buy GLA 8,400. Buy factory overheads 2,42,250. Buy admin 74,000. Buy selling and distribution 64,200. Buy wages control account 2,14,300 and buy balance carried down 46,600. चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया है। वी आर नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 4। नॉन इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के इसी लेक्चर में विद इंटीग्रल अकाउंटिंग, करेक्ट, इंटीग्रल कॉस्टिंग। सो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने रजिस्टर्स में आइए और जैसा मैं कहता हूं वैसे फॉर्मेट्स बनाइए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली आपसे नीचे कहा है कुछ अकाउंट्स बनाने के लिए, वो सारे अकाउंट्स हमें बनाना है। सो लेट्स प्रिपेयर वन बाय वन। सबसे पहले ये जो अकाउंट है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट योर GLA अकाउंट, करेक्ट। सो कम टू योर रजिस्टर, राइट डाउन क्वेश्चन 4/AAA/7.8। Question 4/AAA/7.8 in the books of Supreme Manufacturing Company. In the books of Supreme Manufacturing Company. Write down heading of first account, cost/General Ledger Control Account. आपको पता हो कि ये क्या है, इसीलिए हम उसका नाम cost/General Ledger Control Account।
then leave approximately 7 to 8 lines blank. Then write down heading of second account, stores ledger control account. Stores ledger control account. Again leave around 6 to 7 lines blank. 6 to 7 lines blank. Then write down WIP control account. WIP control account. I think you may be left with 1/3 of the page blank, correct? Leave it blank. Come to the next page. Come to the next page. Finished goods stock control account. Finished goods stock control account. We need this account for hardly 4 to 5 lines. Then factory overheads control account. Factory overheads control account. So maybe for another 5 lines. Then you have to prepare costing P&L account. Costing P&L account. 4 lines. उसी पेज पे हो जाएगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th April for around 5 to 6 lines. Trial balance as on 30th April. चलिए आगे. ओके, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. एक और मौका, एक और कोशिश नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग को समझने की. रेडी ऑल ऑफ यू? सबसे पहले हमें दिए गए ओपनिंग बैलेंसेस. So come to stores ledger control account debit side. To balance brought down 35,000. To balance brought down 35,000. WIP control account debit side. To balance brought down 38,000. Finished goods control account debit side. To balance brought down 25,000. सबसे पहला अकाउंट है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. उसके क्रेडिट साइड में लिखिए रॉ मटेरियल परचेज 95,000. जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट. तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल के डेबिट में लिखिए टू GLA 95,000. टू GLA 95,000. और GLA के क्रेडिट में बाय स्टोर्स लेजर 95,000. रिटर्न टू सप्लायर. बच्चों, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर. परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टोर से गुड्स बाहर जा रहे हैं तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं, क्रेडिट. अब हमने इससे प्रीवियस वाले ट्रांजैक्शन में गुड्स खरीदे थे तो GLA डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था? क्रेडिट हुआ. एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री होगी. क्या होगा? GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. फक्त बोर्ड पाहिजे जसा शगुन चौकात. ती आहे ना कपिल शर्मा मध्ये, ती अशी काहीतरी लावत होती वरती, ती लावायचं ना आज. गुड्स इश्यूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन किस अकाउंट में होता है? WIP में. तो एंट्री होगी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न टू स्टोर. इसका मतलब क्या है? जो गुड्स WIP में भेजे थे ना, स्टोर से WIP,
वो अब वापस WIP से स्टोर आ गए, मतलब रिवर्स एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, सोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट क्रेडिट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट क्रेडिट। मनीषा मत लिखो, आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। उसका एक्चुअली क्या हेयर स्टाइल ऐसी है कि एक आंख कवर हो गई ना, उसको एक ही आंख से दिख रहा है, तो इट्स ओके। बहुत मजा आता है मतलब उड़ाने। मैंने आज सुबह से सिर्फ एक की नहीं उड़ाई और वो है मुक्ता, बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं उड़ाऊंगा बिकॉज आई रिस्पेक्ट हर लाइक अ टीचर। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, क्या एंट्री होगी प्रोडक्टिव वेजेस की? ये वेजेस है मतलब वेजेस से एसोसिएटेड है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? प्रोडक्टिव वेजेस 40,000 WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। प्रोडक्टिव वेजेस है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहां जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। चलें आगे। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इंकर्ड, क्या जनरल एंट्री होगी इसकी? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इंकर्ड, एक्सपेंसेस इंकर्ड है कितने? टोटल 50,000 पेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 40,000, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं 40,000। अब देखो, वैसे तो ये सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन वो अकाउंट हमको बनाना है नहीं है। अगर बनाते थे तो उसकी एंट्री क्या होती थी? सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GLA, मतलब गो टू GLA क्रेडिट साइड। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयरहाउस। क्या है ये एग्जैक्टली? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयरहाउस, इसका मतलब क्या है? वो गुड्स जो ड्यूरिंग द मंथ ईयर बन चुके हैं। गुड्स कहां से बन के कहां जाते हैं? WIP से बन के फिनिश गुड्स जाते हैं, तो एंट्री क्या होगी? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट क्रेडिट। फिनिश गुड्स कंट्रोल के डेबिट में टू WIP कंट्रोल, और WIP कंट्रोल के क्रेडिट में बाय फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से कहां ट्रांसफर होता है? FG से ट्रांसफर होता है COGS में। समझ में आ रहा है? सो कम टू FG कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय COGS। मैडम बाय FG कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय COGS कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000। अच्छा, अब देखो COGS अकाउंट हम बना रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन हमें पता है कि COGS का बैलेंस कहां जाता है? कॉस्टिंग PNL में। तो इमीडिएटली आ जाओ, कॉस्टिंग PNL को डेबिट कर दो टू COGS 2,10,000। डोंट फॉरगेट, ऐसा एक इफेक्ट हमारा अभी देना बाकी है वेजेस कंट्रोल अकाउंट का, देखेंगे बाद में, ट्रायल बैलेंस करेंगे जब।
सूखी सूखी जिंदगियों पे क्या कमेंट करूं, मुझे बताओ। आप बेचारे बॉयज को देखो, प्रभात को देखो, इसको मुझे देखो, क्या मैं एकदम ऐसा बिल्कुल 200-250 में जो मिला उठा के लिया है पेन कागज सो के। कम से कम मतलब आपकी ज्वेलरी वगैरह, बड़े लोग, मतलब आज मैं देख रहा हूं गर्ल्स आर सो कॉन्शियस अबाउट हर हेयर्स। कोई ऐसे ऐसे कर रही है, कोई ऐसे ऐसे कर रही है। ये पुराने जमाने में वो विलन्स नहीं होते थे, एक आंख ऐसे बंद होती थी उसके ऐसे लगाते थे, करेक्ट, बोगेम्बो, खुश हुआ, दैट टाइप ऑफ थिंग। नहीं, बाकी अभी बहुत बाकी है। आज तो अभी तो दिन शुरू हुआ है। सो इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इसलिए ये कह रही है मैडम कि मैं एकदम सिंपल तैयार होके आई हूँ, कोई ज्यादा कमेंट कॉम्प्लीमेंट कुछ करने का स्कोप ही नहीं बचे। और सबसे सिंपल कौन रेडी हुई है? इसका अंदर से मन कर रहा है मुझे ये बोलने का, जीव दे सर, जीव दे दो। बोल भी रही होगी बट चलो। सेल्स आर 3 लाख, कम टू कॉस्टिंग P&L क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 3 लाख। अब समझना, 2 अकाउंट्स के इफेक्ट्स देना अभी भी बाकी है। कौन से हैं वो 2 अकाउंट्स? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमने पे किया है 40,000। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? अब अगर ये अकाउंट बनाते थे तो कैसा होता था? जस्ट लुक एट द स्क्रीन। आपने बनाया नहीं और जरूरत भी नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर अकाउंट बनता था तो क्या होता था? आपने क्या एंट्री पास की? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट क्रेडिट। मतलब ये अकाउंट होता था डेबिट कितने से? 40,000। Can you tell me? You can look at the diagram which we prepared in the last lecture. Selling and distribution overheads are transferred to which account? Cost of sales account. और cost of sales से वो कहां ट्रांसफर होता है? Costing P&L। तो यहां ये सीधा ट्रांसफर कर देंगे costing P&L में। Come to costing P&L debit side to selling and distribution overheads 40,000। दूसरा पेंडिंग क्या है? ये है पेंडिंग, चेक कीजिए। 40,000 प्रोडक्टिव वेजेस थे, 25,000 अनप्रोडक्टिव वेजेस थे। क्या किया हमने इन दोनों का? दे हैव बीन कंसिडर्ड एज वेजेस पेड। बिल्कुल सही बात है, ओके। 40,000 प्रोडक्टिव वेजेस, क्या एंट्री पास की हमने? प्रोडक्टिव वेजेस की क्या एंट्री पास की? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, चेक करो। और इनडायरेक्ट लेबर की क्या एंट्री पास हुई? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। मतलब ये अकाउंट क्रेडिट तो हुआ है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट कब होता है? जब वेजेस पे होते हैं। कैन आई से टोटल वेजेस दैट वुड हैव बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 65,000। और इसकी एंट्री क्या होती है पेमेंट ऑफ वेजेस की? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। फैंटास्टिक। कम टू GLA अकाउंट क्रेडिट साइड बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 65,000। चलो लास्ट कुछ लाइंस दी है वो पढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। व्हाट आर दी डायरेक्ट वेजेस माय डियर फ्रेंड्स? 40,000। 40,000 का 150% कितना होता है? 60,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कहां होता है? WIP कंट्रोल अकाउंट में। कम टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 60,000। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 60,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 60,000। डन ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब
Any under or over absorbed overheads being carried forward for adjustment in the subsequent months. यहां पे क्या कहा है आपसे कि ओवरहेड्स अकाउंट में अगर कोई भी अमाउंट बचेगा तो उसे आपको कैरी करना है, मतलब दैट विल बी आइदर टू बैलेंस कैरी डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन. All admin and selling expenses are treated as period cost and transferred to P&L account in the month in which they are incurred. I think we have already transferred selling and distribution overheads to P&L account, isn't it? चलो लेट्स क्लोज ऑल द अकाउंट्स वन बाय वन. क्विकली करते हैं. सबसे पहले आएंगे हम किस अकाउंट में? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. डेबिट में है गुड्स परचेज, क्रेडिट में है गुड्स इशूड टू प्रोडक्शन. जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी बाय बैलेंस कैरीड डाउन विच इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल. कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग 32,000? Immediately come to your trial balance debit side, stores ledger control account 32,000. Trial balance debit side, stores ledger control account. Okay, चले आगे. Okay, सेकेंड अकाउंट है WIP कंट्रोल अकाउंट. WIP के डेबिट में है, आप देखेंगे मटेरियल आया है 98,000, वेजेस आ गया है, ओवरहेड्स आ गए. करेक्ट. WIP अकाउंट के क्रेडिट में अगर आप चेक करेंगे तो गुड्स बन के फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हो गए. अब जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. इज इट कमिंग 20,000? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, इज इट कमिंग 20,000? चेक ऑल ऑफ यू. आ रहा है? Come to your trial balance debit side, WIP control account 20,000. फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में है वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुए हैं. क्रेडिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, मतलब दोज गुड्स विच वी हैव सोल्ड. अब जो भी बचेगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड. फाइंड आउट हाउ मच इट इज. 28,000. Immediately come to your trial balance debit side, write down to FG, no not to, FG stock control account 20,000. 28,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में क्या पोजीशन है? व्हाट इज द पोजीशन इन फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट? चेक करो. 15,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन. क्वेश्चन में दिया है कि अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड. सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन. हैव यू गॉट 15,000 ऑल ऑफ यू? क्या हुआ बेबू? नहीं आया? आया. डेबिट बैलेंस है. कम टू ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 15,000. लिखा. चलें आगे. Costing P&L account. You have credited with sales 3 lakh, debited COGS 2 lakh 10,000 and debited selling and distribution overheads 40,000. Balancing will be costing profit for 50,000. Costing profit 50,000. ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? बरोबर है तुझं. आज पण बरोबर है. 50,000 is known as credit balance. Come to costing your trial balance credit side. Costing P&L account amount is 50,000. अब एक अकाउंट बचा है GLA अकाउंट. चेक करो व्हाट इज द पोजीशन और बैलेंस इन GLA अकाउंट. 45,000. और कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. 45,000 है और क्रेडिट बैलेंस है. चेक ऑल ऑफ यू. व्हाट? हाँ लगाई आप.
जब गुड्स सेल किए, बेचे, तो क्या एंट्री होती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कैश और बैंक के जगह हमारे पास क्या है? जीएलए, तो जीएलए के डेबिट में आएगा टू सेल्स। नहीं सर, चीटिंग। आपने एक फिगर तो बताया नहीं, फिर हम कैसे लिखेंगे सर? फैंटास्टिक, यू सो ओबीडियंट। 3 लाख, so balance becomes 45,000. क्रेडिट बैलेंस है 45,000. टेक इट टू योर ट्रायल बैलेंस एंड चेक करो ट्रायल बैलेंस टैली हो रही है या नहीं हो रही है। इसे होना होगा। कितना है टोटल? 95,000. चलें आगे। ओके, तो अब यहां स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 विल स्टार्ट विद द इंटीग्रल अकाउंटिंग. Let me tell you guys, integral accounting is much easier as compared to non-integral. What is an integral accounting? Only one set of books of accounts are maintained, whether it's for cost accounting or whether it's for financial accounting. It's just that in the same set of books of accounts, few new additional ledger accounts are opened. और वो accounts कौन से हैं जो अभी हमने देखे हैं? Stores ledger adjustment account, store ledger control account, wages control account, factory overheads control account, WIP control account. So ये सारे accounts open होते हैं. मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नॉन इंटीग्रल में, लिसन केयरफुली, नॉन इंटीग्रल में जब हम मटेरियल परचेस करते हैं, हम क्या एंट्री पास करते हैं? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए. और अब यहां हम एंट्री पास करेंगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. खत्म हो गया. क्यों ऐसा? क्योंकि अब एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हमारे पास, जहां हमारे पास कैश भी है, क्रेडिटर्स भी है, एसेट्स भी है, लायबिलिटीज भी है, इनकम भी है, एक्सपेंस भी है, एंड इट्स जस्ट दैट हम कुछ एडिशनल अकाउंट्स ओपन करते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस. करेक्ट? सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. पहले आइए रजिस्टर में फॉर्मेट्स लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 5/AAA/7.8. क्वेश्चन 5/AAA/7.8. चले आगे. ओके, in the books of we are not given the name, so let it be blank dash. सबसे पहला अकाउंट देखिए, you are asked specifically to prepare 5 accounts which we are going to prepare. सबसे पहले अकाउंट का नाम लिखिए सोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. Leave approximately 4 to 5 lines blank. Then write down WIP control account. WIP control account. Leave around 6 to 7 lines blank. Then write down finished goods control account. Finished goods control account. Leave around 5 to 6 lines blank. Maybe you can't accommodate new account on that page, so come to the next page. Production overheads control account. Production overheads control account. And then maybe leave around 8 to 9 lines and then write down last account. ध्यान से देखना, यहाँ कॉस्टिंग P&L नहीं है, यहाँ नाम क्या है? P&L. और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है, एक ही P&L बनेगा, P&L अकाउंट. P&L account for another 7 to 8 lines. Come on, draw the formats. Question number 5, integrated accounting. In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost account for a company
which operates costing system fully integrated with financial accounting. The following relevant information is provided to you. So we have been given certain balances at the beginning of the month. So जैसा हम करते आते हैं इन balances को लिखते हैं. Stores ledger control account के debit में to balance brought down 25,000. Stores ledger control account के debit में to balance brought down 25,000. WIP control account debit side to balance brought down 20,000. And finished goods control account debit side to balance brought down 35,000. Prepaid production overheads brought forward from the previous month. Production overheads मतलब कुछ नहीं है, factory overheads control account. So factory overheads कुछ prepaid है. Can I say there is an opening balance? Correct? So come to factory overheads control account debit side. Either you can write to balance brought down into bracket prepaid, or you can even write just prepaid. 3,000. Okay. Let's move ahead. Transactions during the month have been given to you. Material purchase बहुत अच्छे से समझना, इंटीग्रल का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है मटेरियल परचेज खरीदा है, क्या एंट्री पास होगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. फैंटास्टिक. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. It can be cash, actually it can be bank, or it can be sundry creditor. डेटर से पैसे लेते हैं. आज कंसंट्रेशन कहीं और है तो कैसे? हाँ, आप लोग, मेरा नहीं, आप लोग डिस्टर्बिंग अ लॉट. नाउ टोटल वेजेस पेड नो सॉरी मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री मेंटेनेंस. अब समझना, वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में इशू हुआ है वो कहां जाएगा? WIP. और जो फैक्ट्री मेंटेनेंस मतलब इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट. एंट्री क्या होगी इसकी? WIP अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. कम टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय WIP control account by production overheads control account. Check the amounts 30,000 and 4,000. Respective account debit side to stores ledger control account correct. मटीरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, क्या है इसका मतलब? मटीरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस क्या मतलब है इसका? डू यू रिमेंबर मटेरियल टॉपिक में देखा था, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अनदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. व्हाट इज द डॉक्यूमेंट विच इज इशूड? MTN, मटेरियल ट्रांसफर नो. इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो ये समझना बहुत जरूरी है. नो एंट्री. व्हाई नो एंट्री? बिकॉज मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड इंटर आलिया इंटर एलिया. Total wages paid to direct worker is 25,000 and to indirect worker is 5,000. Again, direct worker के जो wages है वो कहां जाएंगे? WIP में. और indirect worker के कहां जाएंगे? लेकिन रुको, पहले तो पे करेंगे. Can I say total payment is 30,000 और wages को पे करेंगे टोटल 30,000. एंट्री क्या होगी? wages control account debit to cash और bank account credit. So come to wages control account
जरूरत नहीं है ना, उन्होंने कहा नहीं है तो क्यों बनाया। डेबिट में आ गया टू कैश और बैंक। अब ये क्रेडिट में हो रहे हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कहां हो रहे हैं, कुछ जा रहा है WIP में। कम टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने नहीं बनाया था। और क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि हमें कहा नहीं था। एग्जामिनेशन में एवरी मिनट इज वेरी प्रेशियस। और इनडायरेक्ट जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, यहां पे होगा 5000। आर वी प्रिपेयरिंग कैश और बैंक अकाउंट, नो। करेक्ट। चले आगे। सो कैन आई से अभी इस पॉइंट पे मेरा वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो गया। कैसे क्लोज हो गया, पेड इज 30,000 एंड एब्जॉर्ब्ड इज ऑल्सो 30,000। एबनॉर्मल, ओके सॉरी, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस 20,000। व्हाट डज दैट मीन, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस 20,000। अब समझना, दो ट्रांजेक्शन्स में कर रहा हूं हाईलाइट, उसके बीच में है कुछ रिलेशनशिप। डायरेक्ट वर्कर्स को वेजेस पे हुए थे 25,000। हैव यू अंडरस्टूड दैट पार्ट। डायरेक्ट वर्कर्स मतलब रिलेटिंग टू WIP, लेकिन उसमें हुआ क्या, एक्चुअली WIP को चार्ज 25 नहीं हुआ है, 20,000 हुआ है। और 5,000 क्या हुआ, एबनॉर्मल नॉन प्रोडक्टिव डायरेक्ट वर्कर आवर्स फॉर नॉन प्रोडक्टिव टाइम फॉर डायरेक्ट वर्कर्स। कम टू योर WIP अकाउंट, जानबूझ के करना है ओवर रेटिंग, और यहां फिगर लिखिए 20,000। 25 को कट करके 20,000। ये याद रहना चाहिए कि हमने कट किया था। और क्यों कट किया था, क्योंकि वेजेस जो पे हुए थे डायरेक्ट वर्कर को, उसमें से एब्जॉर्ब हुए हैं 20,000 और 5,000 वेस्ट हो गए, वेस्ट, लॉस, एबनॉर्मल लॉस, PNL, नॉट कॉस्टिंग PNL। अनप्रोडक्टिव। समझ में आ रहा है आप लोगों को। काफी बार दाग अच्छे होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंकर्ड 6,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अल्टीमेटली आते कहां है, PNL अकाउंट में। सो कम टू PNL अकाउंट डेबिट साइड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वैसे आपको पता है वो जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिर वहां से आते हैं PNL, करेक्ट। बट वो अकाउंट्स हमें बनाना नहीं, जितना का है उतने अकाउंट्स ही हम बनाएंगे। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर्ड, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या एंट्री होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वेरी गुड। कम टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज 12,000। Sales is rupees 1 lakh. Cash or bank account debit to sales account, and sales is transferred to PNL account. So by sales account 1 lakh. Cost of finished goods sold. Can I simply say इसका मतलब होता है COGS। 80,000 है COGS। COGS कहां से निकलता है और कहां जाता है, WIP से तो फिनिश गुड में जाता है, पर फिनिश गुड से COGS निकलता है। सो कम टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड, मे बी सेकेंड लास्ट लाइन, बाय COGS अकाउंट 80,000। फिर ये COGS जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और वहां से जाता है PNL में। मतलब क्योंकि हमें COGS नहीं बनाना है, तो हम सीधा सीधा कहां जाएंगे, PNL में।
डन ऑल ऑफ यू? चलें आगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड। अब ये कहां से कहां जाएगा? WIP से फिनिश गुड। वो गुड्स जो नए बने ना ड्यूरिंग द मंथ, वो अब WIP नहीं रहे, वो WIP से ट्रांसफर होंगे फिनिश गुड में। एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय WIP, हाँ डेबिट में आएगा, सॉरी, टू WIP कंट्रोल अकाउंट 65,000 और WIP कंट्रोल के क्रेडिट में आएगा बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 65,000। Physical value of WIP at the end of the month 35,000. What is this? Closing balance of WIP account. So we are already in WIP account, credit side by balance carried down 35,000. And now the production required absorption rate of 150% of direct wages charged to WIP. क्या मतलब है इसका? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कौन से डायरेक्ट वेजेस? चार्ज टू WIP। जरा चेक करो, डायरेक्ट वेजेस WIP को चार्ज 20,000 हुए या 25,000 हुए? तो 20,000 का 150% होगा 30,000। so ये क्या है? These are factory overheads charged to WIP. Come to WIP debit side to production overheads control account 30,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 30,000। आप चाहो तो वहां ब्रैकेट में लिख सकते हो खुद के लिए, ताकि बाद में घर पे पढ़ते समय, रिवाइज करते समय प्रॉब्लम ना हो। 20,000 इंटू 150%। सॉरी, हाँ करेक्ट। चलिए आगे। What else is left now? That's all. So now we'll close, but understand one by one. सबसे पहले हम आते हैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। चेक करो, डेबिट में गुड्स आए हैं, हाँ। ये क्रेडिट कब होता है? जब गुड्स जाते हैं। गुड्स कहां कहां जाते हैं? दे आर इशूड फॉर प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब जो बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। Is it coming 66,000? हमें यहां कोई ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं है, करेक्ट, बट P&L अकाउंट हम बना रहे हैं। WIP कंट्रोल अकाउंट में देखिए क्या पोजीशन है। डेबिट में मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। क्रेडिट में वो गुड जो बन के फिनिश गुड में ट्रांसफर हो गए वो है। क्लोजिंग है। आइडियली तो इस अकाउंट में बैलेंस होना ही नहीं चाहिए। इज इट गेटिंग टैलीड? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में क्या मिलेगा हमें? क्लोजिंग स्टॉक। Are you getting 20,000? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में सर हमारे पास प्रीपेड था, कुछ हमने पे किया और क्रेडिट में हुआ एब्सॉर्ब। सर यहां पे बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 6,000 ऑन डेबिट साइड है। क्या होगा ये? What is this 6,000? क्या होगा ये 6,000? क्या लगता है आपको?
प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में 6000 है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट फिर से समझना, डेबिट कब होता है? इट इज डेबिटेड व्हेन ओवरहेड्स आर पेड एंड दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड। कब क्रेडिट होता है? व्हेन ओवरहेड्स आर absorbed. Can I say overhead absorbed are 30,000 and overheads paid are 24,000? Can I say there is over absorption? Over absorption is my gain and it is transferred to P&L account. Now we'll find out the net profit. It's not the costing profit, correct? Check all of you. Have you got this? आया सभी का? क्लियर? कम ऑन, क्विकली गो टू योर इंडेक्स और ये दोनों क्वेश्चंस को वहां पोस्ट कीजिए। चले आगे, कम टू नंबर 7। Question number 7. Datta Enterprises operates an integral system of accounting. You are required to pass the journal entries for the following transactions that took place for the year ended 30th June 2018. Narrations not required. चलो, so सिर्फ जर्नल एंट्रीज हमें पास करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। डोंट फॉरगेट इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम है यहाँ, करेक्ट? तो उसको कंसिडर करके हम एंट्रीज पास करेंगे। कम टू योर रजिस्टर, राइट डाउन क्वेश्चन 7/AAA/7.1। In the books of Datta Enterprises journal entries. आज उसकी करें स्टार्ट। हाँ, मैचिंग डे मतलब काय झालं? आपको एक्चुअली पता है रेनबो कलर का पेन क्या आना चाहिए था।
एक से मैच करो दूसरी नाराज, दूसरे से मैच करो तीसरा नाराज. So he's speechless, you know. He's speechless. ये अकाउंट खोलने से पहले सोचना चाहिए था. बेचारा वेदांत बहुत सीधा है. हाँ, ये देखो ऐसे लोग भी आपके केवाईसी वेरीफाई करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. रॉ मटेरियल परचेस्ड ₹6 लाख. रॉ मटेरियल कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट. लेकिन उसमें से 50% क्रेडिट पे. तो टू कैश अकाउंट 50% एंड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 50%. चलिए लिखते हैं पहली जर्नल एंट्री. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैश और बैंक अकाउंट 3 लाख and to sundry creditors account 3 lakhs. Check column. नाराज हो गया. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन 4 लाख. क्या एंट्री होगी? मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. वेरी गुड. नंबर 3, वेजेस पेड 2 लाख जिसमें से 50% डायरेक्ट है. 50% डायरेक्ट है मतलब 50% क्या होंगे? इनडायरेक्ट होंगे. थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे, ध्यान दीजिएगा. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये किया था. सबसे पहले तो वेजेस पे करेंगे. टोटल वेजेस कितना पे करेंगे हम? 2 लाख रुपीस. क्या एंट्री होगी जब वेजेस पे करेंगे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2 lakhs to cash of bank account. करेक्ट. अब ये वेजेस को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या एंट्री होगी? थर्ड में WIP इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट. टू wages control account 2 lakhs. नंबर 4, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड. इंकर्ड मतलब पेड. क्या एंट्री होगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड बाय प्रोडक्शन. क्या एंट्री होगी?
WIP control account debit to factory overheads control account credit. So how much is the factory overheads absorbed? 1 lakh. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंकर्ड पेड क्या एंट्री होगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड एट कॉस्ट क्या एंट्री होगी इसकी? फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड एट कॉस्ट 5 लाख क्या एंट्री होगी? फिनिश्ड गुड्स किस अकाउंट में बनते हैं? WIP में. और वहां से बन के कहां जाता है? FG. मतलब एंट्री होगी FG कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट 5 लाख. Number 8. सेल्स. टोटल सेल्स आर 7,50,000 जिसमें से 50% दिया है क्रेडिट हुआ है. मतलब कहने से 50% इज कैश सेल. तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. डन ऑल ऑफ यू. चलें आगे. क्लोजिंग स्टॉक नील है, उसकी कोई एंट्री नहीं है. रिसीट फ्रॉम डेटर्स एंड पेमेंट टू कस्टमर सबसे आसान है. रिसीट फ्रॉम डेटर्स कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. आपकी कहानी जिस चीज से चालू हुई थी, आज घूम फिर के आप वापस उसी चीज पे पहुंच गए. द साइकिल ऑफ लाइफ. यहां तक सुनाई आया है मुझे. आपकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग होती है? जो एस से चालू होता है आर से खत्म होता है. लेक्चर नंतर बोलू. हाउ वाज योर सीक्रेट फ्रेंड आर्टिया? कैसा क्या मिला? हाँ
चलो मत बताओ, हमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वैसे। हाउस द एक्टिविटी गोइंग? किस किस को कुछ तो मिला है? जगू ये ज्वेलरी सीक्रेट फ्रेंड ने दी ना? ओनली दीज मेनी? देखो, जो भी इसका सीक्रेट फ्रेंड है, क्या नाम है इसका, दीपांशी, तो वो मन से गाली दे रही है। तो प्लीज आज कुछ तो दे दो, चाहे 1 रुपए की मेलोडी क्यों ना दो, और दो, लंच लाके दो, इसको कुछ भी मत दो, मेलोडी भी मत दो। कॉम्प्लान तो अब बढ़ने की उम्र खत्म हो गई है, अब बढ़ने का स्कोप नहीं है। लंच लाके दो। हाँ? अच्छा, आप उसका एड्रेस भी बता रहे हो कहां का लंच लाना है? कुछ मेन्यू में भी हो तो बता दो, यहाँ पे जो होगा आपका सीक्रेट फ्रेंड। अच्छा, वहां फिक्स मेन्यू होता है, 40 रुपए थाली मिलती है, 30 रुपए थाली मिलती है। इस एक्सपेक्टेशन में खुद भी लंच नहीं लाएगी, वहां से भी लंच नहीं आएगा। नो, यू हैव ड्यूटी ओनली। चले आगे। ओके, चलिए इंडेक्स में जाइए, पोस्ट कीजिए इस क्वेश्चन को वहां। गो टू इंडेक्स, पोस्ट दिस क्वेश्चन ओवर देयर। Now, my dear friends, we are moving to the last segment of this topic. The last segment where we have to find out the profit or loss under financial accounting. We have to find out the profit or loss under cost accounting, and then we have to prepare the reconciliation statement. So, जैसा मैंने आपसे कहा था कि दिस इज द पार्ट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और आते भी हैं, करेक्ट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। पहले पढ़ते हैं, क्विकली फास्ट करेंगे ताकि एंजॉयमेंट के लिए समय ज्यादा मिलेगा। अब तो देखो ऐसा फास्ट होता है। The following figures have been extracted from the financial accounts of a manufacturing firm for the first year of its operation. Direct material consumed, direct wages, factory overheads, admin overheads, selling overheads, bad debts. समझना, please concentrate. Bad debts, it is not considered in cost accounting because it's a financial expense. Preliminary expense written off, it is also not considered in cost accounting. Theory part अगर पढ़ा होगा तो। Legal charges देखेंगे, dividend receive ये भी कंसिडर नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंसिडर होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट ये भी इनकम है। सेल्स ये नॉर्मल इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है, WIP हमें दिया है। The cost accounting for the same period reveals that the material consumption was rupees 56,000. The cost accounts reveal कि मटीरियल कंजम्पशन हुआ है 56,000, ओके, सॉरी लैक्स, 56 lakhs. फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड आर 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगी हमें? डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेस प्लस एक्सपेंसेस, ओके। Admin overhead is recovered at ₹6 per unit of production and selling and distribution overheads are ₹8 per unit sold. Prepare the P&L both as per financial record and as per cost records. Reconcile the profit as per 2 records. करते हैं, देखते हैं, बहुत easy question है। Quickly go to your registers. Write down question number 8/AAA/7.1. सबसे पहले हेडिंग लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहली हेडिंग लिखिए
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 7.11. Profit and loss account, and write into bracket financial accounting. Profit and loss, financial accounting, and leave half page blank. Leave half page blank. Yeah, rather what we can do, let's first focus on this P&L account only as per financial accounting. फिर कितना स्पेस बनता है उसके बेसिस पे बनाएंगे. करेक्ट. क्विकली ड्रॉ फॉर्मेट, particulars amount. करें स्टार्ट. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी प्लेन सिंपल इजी क्वेश्चन. यहाँ पे आपको बनाना है P&L अकाउंट विद द गिवन फिगर्स. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट, डायरेक्ट मटेरियल, wages, factory overheads, admin overheads, selling overheads, bad debt, preliminary expense, legal charges, ये सारे होंगे डेबिट. लेट्स लिस्ट डाउन वन बाय वन. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड सेल्स, ये तीनों मेरी क्या है? इनकम. सो विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड. करेक्ट. लिखा सभी ने? एक्चुअली आप ये देखोगे तो ये मेरा ट्रेडिंग भी है और ये मेरा P&L अकाउंट भी है. करेक्ट. हम अभी यहाँ क्या करें? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. डोंट फॉरगेट, यहाँ पे स्टॉक्स आना चाहिए. ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना. सो ओपनिंग स्टॉक तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन देखिए नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है. सो कम टू क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय क्लोजिंग स्टॉक. अच्छे से समझिएगा. यू हैव वन होमवर्क क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न टुडे. दैट्स ऑल. नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है दैट्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. सो क्लोज दिस अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. Have you got this? 12,90,000. आया सभी का?
अब समझिएगा ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहां में 3 चीजें बनानी है. वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें उसके लिए बनाना होगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. हैव वी डन दैट? यस. वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट. वो हमें पता चलेगा आफ्टर वी मेक कॉस्ट शीट, जिसको हाफ पेज से ज्यादा लगेगा. और तीसरा हमें बनाना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. प्रॉफिट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा है 12,90,000. अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, और दोनों को जो डिफरेंस आएगा उसको करेंगे रिकंसिल. तो अगर आपने नए पेज से क्वेश्चन चालू किया है और ये हाफ पेज पे हो गया है, तो बाकी हाफ पेज ब्लैंक छोड़ दो, वहां हम रिकंसिलेशन बना लेंगे. कम टू द नेक्स्ट पेज, राइट डाउन प्रोडक्ट कॉस्ट शीट. करेक्ट क्या? इतना ही नहीं, वो तो आधे पेज से ज्यादा लगेगा. उसका फॉर्मेट बनाना क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, दैट्स प्लेन एंड सिंपल. करेक्ट. अब समझना, आप जब ये फॉर्मेट बना रहे हो, या ये जब अकाउंटिंग अब आप कर रहे हो, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट जब आप बना रहे हो, तो आपको ये बनाते समय ध्यान रखना होगा वो जो नीचे डेटा दिया है वो. प्रोडक्ट कॉस्ट शीट का सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स प्रिपेयर अ स्केलेटन सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर अस, है ना. क्या होता है प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, कहां से स्टार्ट होती है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसकी सब टोटल से हमें क्या मिलता है, ए प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो हमें क्या मिलता है, फैक्ट्री कॉस्ट. इजंट इट? ये फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग WIP. क्या यहाँ पे है ओपनिंग WIP? नहीं है, बट हम लेस करते हैं. क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग WIP. सिर्फ हेडिंग्स लिखना है इसलिए लिख के रखेंगे, ऐड ओपनिंग WIP less closing WIP, and you get what, factory cost of goods produced. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसमें क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. less closing stock of finished goods, you get E, cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो हमें मिलेगा F, कॉस्ट ऑफ सेल्स. और ये F में जब हम करेंगे ऐड प्रॉफिट, तो जाके मिलेगा हमें G सेल्स. करेक्ट. करें स्टार्ट. समझिएगा अच्छे से, फिर से ध्यान से. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम,
ऊपर दो क्वेश्चन में दिया है 50 लाख, लेकिन नीचे कुछ दिया है, वो पढ़िए. The cost accounts for the same period revealed that the material consumption was rupees 56 lakhs. So how much are we going to consider? 56 lakh. कुछ अगर दिया है अलग से तो वो लेंगे, नहीं तो जो ओरिजिनल डेटा दिया उसे उसे यूज करेंगे. डायरेक्ट वेजेस के बारे में अलग से कुछ नहीं दिया है, तो वेजेस हम कितना लेंगे? 30 lakhs जितना दिया है क्वेश्चन में. डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया नहीं है, वी विल गेट दी प्राइम कॉस्ट. चेक ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग दिस मच? फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ कहा है, एब्जॉर्प्शन रेट दिया है, चेक करो. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 20% ऑन प्राइम कॉस्ट. तो मैं ब्रैकेट में आके लिखता हूं 20% ऑन प्राइम कॉस्ट. सो 86 लाख का 20%, और तो मुझे मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट. हैव यू गॉट दिस मच फैक्ट्री कॉस्ट? अब ये फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP जो दी नहीं है माइनस क्लोजिंग WIP, चेक करो क्वेश्चन में कितनी है? 2,40,000. You get factory cost of goods produced. Are you understanding all of you? चले आगे. एड एडमिन ओवरहेड्स, चेक करो क्या दिया है नीचे. एडमिन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. रुको, एडमिन ओवरहेड्स कितना है? ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. बट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कहां से निकाल सकते हैं हम? वो तो दिया ही नहीं है. प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग. और प्रोडक्शन कभी भी किसका होता है? फिनिश गुड. फिनिश गुड की क्वांटिटी सोल्ड चेक करो 1,20,000 यूनिट्स, प्लस क्लोजिंग स्टॉक चेक करो 4,000 यूनिट्स, माइनस ओपनिंग स्टॉक 0. तो इज इट कमिंग 1,24,000 यूनिट्स? प्रोडक्शन इज 1,24,000, एडमिन ओवरहेड्स होगा 6 इंटू 1,24,000. लिखते हैं यहां ब्रैकेट में आके ताकि बाद में याद रहे. 1,24,000 इंटू 6. To get the cost of production, opening stock of finished good is dash, closing stock of finished good आपको वैल्यू दी है क्या? हाँ, लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? कॉस्टिंग में हमने देखा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कैसे होगा? टेक ऑन योर कैलकुलेटर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,08,24,000. This is the cost of production for how many units? 1,24,000 units multiplied by what is the closing stock quantity? 4,000 units. Are you getting this much? 349,161. आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में भी क्वेश्चन में कुछ दिया है. क्या दिया है? ₹8 पर यूनिट सोल्ड. ध्यान रखना, ये चैप्टर 6 चैप्टर 1 दोनों जगह मैंने आपको सिखाया. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज इनकर्ड ऑन द यूनिट्स सोल्ड. व्हाट आर द यूनिट्स सोल्ड? 1,20,000. सो लिखा हुआ अच्छा है कभी भी ब्रैकेट में 1,20,000 इंटू ₹8. You get cost of sales. और फिर सेल्स का फिगर आपको दिया गया है, चेक करो क्वेश्चन में दिया है 1,20 लाख. तो बैलेंसिंग फिगर विल बी योर प्रॉफिट. इज इट कमिंग 565, 161? चेक ऑल ऑफ
चले आगे। अब वो कौन सी दो फिगर्स है जिसे हमें रिकंसिल करना है? आई एम हाईलाइटिंग दोस टू फिगर्स. दिस इज माय प्रॉफिट अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दिस इज माय प्रॉफिट अंडर फाइनेंशियल अकाउंट. कैन यू सी दीज टू फिगर्स? 12,90,000 इज द प्रॉफिट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यहां प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ इतना. प्राइमा फेसी मैं रीजंस डिटेक्ट कर सकता हूं. क्या है रीजंस? सर यहां पे ये जो इनकम्स मैंने ली है ना, ये इनकम्स का वहां कुछ कंसिडरेशन नहीं है. सर यहां मैंने कुछ एक्सपेंसेस लिए हैं विच आर नॉट कंसिडर्ड इन दी कॉस्ट अकाउंटिंग. सर सबसे मेजर पता है क्या है? यहां मटेरियल कॉस्ट है 50 लाख और वहां कितनी है? 56 लाख. दूसरा सर WIP का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन यहां अलग है, वहां अलग. जो आप कह रहे हो सब सही है, बिल्कुल सही है, बस उसको प्रेजेंट कर दो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में और वो बन गया आपका रिकंसिलेशन. लेट्स कम टू दी थर्ड पार्ट. कॉस्टिंग प्रॉफिट विद फाइनेंशियल प्रॉफिट. तो एक टॉपिक हम देखते थे सीए फाउंडेशन में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक उसी तरह का ये एक स्टेटमेंट, करेक्ट? चलें आगे. तो अब हम यहां कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, एंडिंग पॉइंट हैज टू बी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और वाइस वर्सा, करेक्ट? तो सपोज आई टेक ओवर हियर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग and this profit as per cost accounting is coming 565,161. आ रहा है सभी का? चले आगे. अब क्या हुआ है या क्या क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं. बेस मैंने किसको लिया है? कॉस्ट अकाउंटिंग को. तो मुझे फॉलो करना चाहिए कॉस्ट शीट. समझिएगा अच्छे से, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इस पे एक होमवर्क क्वेश्चन है आज का. सबसे पहली कॉस्ट शीट में देखो क्या है? मटेरियल कॉस्ट कितनी है यहां पे और वहां कितनी है? कहना है इसे यहां पे 6 लाख से ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट कम है. अब हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे तो ऐड करेंगे. हाउ मच वी विल ऐड? 6 लाख. करेक्ट? किसी एक को तो बेस लेना पड़ेगा ना, नहीं तो haphazardly you won't be able to find out the solution very fast. Look at the second cost. Which is the second cost? Labor cost. आप मत कीजिएगा, चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो. मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो जो कॉस्ट कंपेयर कर रहा हूँ उसको मैं करता हूँ टिक मार्क. लाइक 56 लाख यहाँ पे टिक मार्क, 5 लाख यहाँ पे टिक मार्क. लेबर कॉस्ट आप देखो कोई चेंज है नहीं, दोनों जगह 30 लाख है, 30 लाख है, टिक मार्क टिक मार्क. करेक्ट? कॉस्टिंग के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 17,20,000. चेक करो यहां पे कितने हैं? 16 लाख. कैन आई से इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड दे आर मोर बाय हाउ मच? 1,20,000. क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट कम दिख रहा होगा. अब हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे. कितना? 1,20,000. समझ में आ रहा है रजत? ऐड ओवर absorption of factory overheads. ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, मतलब कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड्स है ज्यादा तो उसके हिसाब से प्रॉफिट हुआ है कम. तो अब हम उसे करेंगे ऐड बैक. चलो आते हैं वापस हमारे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में, कॉस्ट शीट में. चेक करो क्लोजिंग WIP की वैल्यू है 2,40,000. इज इट सेम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सो आई टिक मार्क बोथ द फिगर्स. नेक्स्ट इज एडमिन ओवरहेड्स. यहां पे है 7,44,000. यहां पे जरा चेक कीजिए एडमिन ओवरहेड
कैन आई से 44,000 इज ओवर एब्जॉर्प्शन, सो क्या करना होगा, ऐड करना होगा. If you take financial profit as the starting point, you should take P&L as the benchmark. If you take costing profit, you should take cost sheet as a benchmark. चले आगे. ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है. यहां क्लोजिंग स्टॉक है 349,161 और यहां है 3,20,000. समझना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है हमारे यहां, तो प्रॉफिट भी दिख रहा होगा ज्यादा. अब प्रॉफिट को करेंगे कम. कितना, 29,161. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. चलें आगे. चेक करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. कॉस्टिंग में है 960, ऊपर चेक करिए कितने, 960. इज देयर एनी डिफरेंस, नो. और सेल्स का फिगर चेक करो, क्योंकि प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर होता है. 1 crore 20 lakh, 1 crore 20 lakh. इज देयर एनी डिफरेंस, नो. आई थिंक कॉस्ट शीट इज ओवर. चेक ऑल ऑफ यू गाइस. अब हमें क्या करना है, जो अनटिक ट्रांजेक्शन है ना, किसमें, पीएनएल में, उसको कंसिडर करना है. चेक करो यहां पे. अब देखो क्या क्या है. सर ये तीनों एक्सपेंस हमने लिए ही नहीं है, कॉस्ट शीट लिए नहीं है, तो वहां प्रॉफिट कैसा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है. तो अब हमें प्रॉफिट कम करना होगा, मतलब ये तीनों एक्सपेंस वहां पे लेस करना होगा. कॉस्टिंग में हम वही एक्सपेंसेस लेते हैं which are directly relating to production. If you observe the nature of these three expenses, they are operational expenses, correct? Can I tick mark those three figures? Is there anything unticked on the credit side? Yes. ये दो इनकम्स वहां नहीं ली, इसलिए वहां का प्रॉफिट कम है. अब हमें बढ़ाना होगा, ऐड करना होगा. 1,20,000. चलो ऐड करते हैं. That's all. And now take a total and see, is it matching? Yes, it's matching. It has to match. Easy है, करेक्ट. अब मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा करना नहीं है बट आता है, एटलीस्ट फाइनेंशियल पीएनएल तो बना के आ सकता है. अगर सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में 9 मार्क्स का आता है और फाइनेंशियल पीएनएल भी बनाया, तो ईमानदारी से 1/3 मार्क्स तो 3 मार्क्स तो मिलेंगे. थोड़ा बहुत तो कॉस्ट शीट भी बना लेंगे. मतलब 9 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है, ऐसा तो नहीं है कि हम खाली हाथ वापस आएंगे. 4 to 5 मार्क्स हम इजीली ला सकते हैं. तो मैं फिर से कह रहा हूं, हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है कि अब कितना हुआ, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज. करेक्ट. डन ऑल ऑफ यू. चलो इंडेक्स में आइए, आपके रजिस्टर्स के लेक्चर को समअप करते हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 7, lecture number 2. In this lecture, after we checked homework, we did classwork question number 4, 5, 7 and number 8. 4 was based on non-integral, 5 and 7 were based on integral, and number 8 we did on reconciliation, correct, which is the last segment of this topic. Your homework questions for today are number 6 and 10.
Number 10 is exactly like number 8, what we did just now, and number 6 is based on integral accounting, correct? So non-integral gets over here. You have to solve 6 and 10. Clear? Paka? See you in the next lecture. Thank you very much.